Hello students, welcome back to the lecture video. In this video, we will be covering the chapter 4, Tribals, Dikus and the Vision of Golden Age. Tribals कौन होते हैं और Dikus कौन होते हैं पहले ये जान लेते हैं. Tribals are all those people who used to live in forest और जो आज भी forest में रहते हैं and they have their own culture and they don't follow the rules made by the Brahmins at that time or the society. They have their own rules, they have their own customs and they have their own rituals. Dikus कौन होते हैं? According to tribals, Dikus वो हैं जो outsiders हैं, जो forest को belong नहीं करते और forest में आकर tribals का जो काम है उसे रोकते हैं and they don't belong to the forest are called as Dikus. विजन क्या है गोल्डन एज का वो जान लेते हैं. गोल्डन एज जो है ऐसा पीरियड है जहाँ पर सब कुछ अच्छा हो. सो अकॉर्डिंग टू द ट्राइबल बिरसा दैट द सतयुगा और द युग ऑफ ट्रुथ वॉज द गोल्डन एज. ऐसी सिचुएशन, ऐसा युग जहाँ पर वो खुश थे और अपने काम करते थे और अपने जीवन जीते थे. सो इन दिस चैप्टर वी विल लुक फॉरवर्ड हाउ द ब्रिटिशर्स और द डिकूज केम टू इंडिया एंड डिस्टर्ब द ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ द फॉरेस्ट. चैप्टर शुरू होता है बिरसा की स्टोरी से. बिरसा वॉज अ ट्राइबल एंड इन 1895 ही was roaming the forest and villages of Chota Nagpur in Jharkhand. So he used to live in Jharkhand. People said that he had miraculous powers. और एक आइडियाज़ बन गए थे कि उसके पास miraculous powers हैं. He can heal person and he was sent by God to save the people of the tribal community from the Dikus or the Britishers. And he also became a leader and thousands of people started following him. Even the people who was not from his tribes, जो उसकी ट्राइब थी that was मुंडा ट्राइब, उसको तभी बोला जाता है बिरसा मुंडा. आपने इनका नाम सुना होगा और ये बहुत बड़े ट्राइबल लीडर थे अपने समय में. छोटा नागपुर प्लेटो जो झारखंड के एरिया को बिलोंग करता है, वहाँ पर संथल ट्राइब भी है और ओराउंस ट्राइब भी है. सो जो बिरसा थे वो मुंडा ट्राइब को बिलोंग करते थे बट उनके फॉलोअर्स अलग अलग ट्राइब से भी थे. So tribals are all those people who used to live in forest and they used to depend on forest. Their custom rituals are far away from the rituals and the customs in the Varna system जो follow करा जाता था. Varna system कहता था कि जो लोग हैं वो 4 parts में divided हैं. That is the Brahman, Kshatriya, Shudra और Vaishya. That means the priest, the warrior, the merchant and the peasant. They had their own rules. Here you can see these are the tribal women of Odisha, Dangoria Kanda tribe in Odisha. They are walking towards a market through a river in Odisha. So जो tribals थे वो basically 4 तरीके की activities में divided थे. उसमें से first थे झुम cultivators. अब ये झुम cultivation क्या है? इसे slash and burning cultivation भी बोलते हैं और shifting cultivation भी बोलते हैं. जो फॉरेस्ट थे उनमें ट्रीज़ हुआ करते थे और ट्रीज़ की टॉप को काट दिया जाता था. जो ब्रांचेस ज़मीन पे गिरती थी उसको जलाकर लैंड को क्लियर किया जाता था फॉर कल्टीवेशन. और जो ऐश थी वो पोटैश कंटेन करती थी जो सॉइल को फर्टाइल कर देती थी. उस पर क्रॉप उगाई जाती थी और एक बार जो क्रॉप उगा दी गई उस लैंड पर तो उसे कुछ सालों के लिए छोड़ दिया जाता था और फिर दूसरे लैंड को कवर कर दिया जाता था कल्टीवेशंस के लिए. शिफ्टिंग कल्टीवेशंस नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बहुत फेमस थी, सेंट्रल इंडिया में बहुत फेमस थी. एक बार जो क्रॉप उग गई उस ज़मीन पर जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर से बनाई गई थी, जो पोटैश हाई फर्टाइल सॉइल थी, उसके बाद उस फील्ड को छोड़ दिया जाना चाहिए 2-3 सालों के लिए, तभी वो फर्टाइल दोबारा से होगी. एंड द लैंड वॉज कॉल्ड फेलो लैंड विच वॉज लेफ्ट बिहाइंड. दे शिफ्टेड टू अनदर लैंड एंड followed the same procedure. So first tribal people were shifting cultivators और झुम cultivators. जो second type of tribal people थे they were hunters and gatherers. Hunters वो थे जो animal को hunt करके अपनी food requirements पूरी करते थे, meat requirements पूरी करते थे. and gatherers क्या है, fruits होगी, berries होगी, उनको collect करते थे. Konds जो थे they used to live in Odisha and they used to hunt collectively in groups and they used to eat fruits, roots collected from the forest and cook food
with oil they extracted from the seeds of sal tree and mahua tree. जो महुआ फ्लावर है और साल का ट्री है उसके सीड से तेल निकालते थे एंड दे यूज टू कुक देयर मीट और अदर थिंग्स इन दैट. श्रब्स यूज़ करते थे, हर्ब्स यूज़ करते थे फॉरेस्ट की फॉर मेडिसिनल पर्पसेस और लोकल मार्केट में भी उसे सोल्ड करते थे. फॉर एग्जाम्पल द लोकल वीवर्स एंड लेदर वर्कर्स टर्न टू द कॉन्स when they needed supplies of kusum and palash flowers to color their clothes and leather.